Students, myself, Dr. Muralidhar Prasad Singh, Associate Professor, Department of Physics, BNM College, Badhaiya. Today, I will discuss Einstein's theory of a specific heat of solids. This is syllabus BSc Part 1 Honors, Paper 2. Before discussing Einstein's theory of a specific heat of solids, because it is based on quantum assumptions, quantum theory, first we throw light on back before Einstein's. Dulong and Petit discovered that for all solids CV is equal to 6 nearly, यानी CV is equal to 6 के बराबर होता है. ये डुलोंग एंड पेटिट जो है पहले निकाले और उसके बाद ये दो एजम्पशन बनाया गया काइनेटिक थ्योरी में कि ये सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एटम every one of which is regarded as a harmonic oscillator with 3 degrees of freedom. Number 2 assumption, the mean kinetic energy corresponding to each degree of freedom is half kT, and this is according to law of equipartition of energy, and based on these two assumptions lead to result that CV is equal to 3R. CV is specific heat at constant volume, 3R is the gas constant. It will seem that for many substances, CV is very nearly equal to 3R. But for a number of substances like beryllium, boron, carbon, silicon, CV was found to be much smaller than 3R. Substances which have normal value of CV at room temperature show an abnormal decrease when investigated at low temperature. At low temperature, the value of CV is very low, and you can say we reach absolute zero. As we reach absolute zero, CV tends to vanish. Then this, in case of silver also, in case of silver, we also see at temperature 0, the theoretical value, the value of CV is nearly 0. Then this anomalies, and this is actually discussed by Einstein on the basis of quantum theory in 1907. So in 1907, Einstein made first attempts to explain the anomalies to the problems of a specific heat. He pointed out that the average energy of an oscillator vibrating with frequency nu is not kT per degrees of vibration, but it is given by the formula h nu divided by e to the power x minus 1, and this is equation number 1. तो ये आइंस्टीन जो है सबसे पहले वो इसके बाद डुलोंग पेटिट और बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि वो 3 डुलोंग पेटिट तो 6R बता रहा था, CV इज इक्वल टू 6R. फिर आगे एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें हुआ कि CV इज इक्वल टू 3R होता है. तो रूम टेम्परेचर पर वो सही है, बट फॉर लो टेम्परेचर यानी T इज इक्वल टू 0, CV जो है वो वैनिश हो जाता था. सिल्वर, बोरन, कार्बन, बहुत सारे केस में ऐसा जब ग्राफ खींचा गया तो ऐसा पाया गया. तो यहाँ से जो है आइंस्टीन ने शुरू किया अपना 1907 में क्वांटम बेसिस के आधार पर, और उन्होंने बताया कि
ये फॉर्मूला कि कोई ऑसिलेटर यदि वाइब्रेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी न्यू से, तो पर डिग्री ऑफ वाइब्रेशन जो है उसका होगा एच न्यू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स माइनस वन, वेयर एक्स इक्वल टू एच न्यू बाई के टी. He assumed that solid like Ag is a collection of atomic vibration characterized by one and the same frequency. वो उनका एजम्पशन था कि he assumed that the solid like Ag यानी सिल्वर का जो सॉलिड है is a collection of atomic vibrations. वो कलेक्शन है एटॉमिक वाइब्रेशन का कैरेक्टराइज बाय वन, जो कि एक ही से कैरेक्टराइज होता है द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी वन है यानी मोनोक्रोमेटिक वाइब्रेशन. Under this assumption, total energy content of a gram atom of the solid consisting of n atoms, यानी टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, कैपिटल U इक्वल टू 3n h nu divided by to the power x minus 1. This is equation number 2. Then we have Cv इक्वल टू Cv स्पेसिफिक हीट हो जाएगा du by dt with respect to temperature. Differentiation of u, this is much equal to 3r x square e to the power x minus 1 whole square. This is equation number 3. अब for large value of t का वैल्यू यदि ज़्यादा होगा then equation 3 gives Cv is equal to 3r. In agreement with Dulong and Petit's law and as before we find, ये तो large value of t यानी for high temperature के लिए कर सकते हैं, but also at t is equal to 0 Cv is equal to 0. लेकिन यदि ये t 0 होता है तो Cv 0 हो जाता है. That is at absolute 0 atomic heat falls to 0. Atomic heat falls to 0. A conclusion be in general agreement with experiment results. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन में कि एक जनरल एग्रीमेंट है विथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कि इसके अनुसार ये होता है. बट तो x कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ थीटा बाई टी, वेयर थीटा इज इक्वल टू एच न्यू बाई के, सो सी वी इज इक्वल टू 3r e theta by 2. E theta by t is a function of theta by t, where ex is equal to x square e to the power x. This much ex is equal to x square ex divided by e to the power x minus 1 whole square. This is equation number 5. So for a particular substance, theta is assumed to have fixed value. ये थीटा जो है टेम्परेचर, वो क्रिटिकल टेम्परेचर वो फिक्स्ड वैल्यू होता है किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, और दिस एक्सप्रेशन गिव्स द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक हीट विथ टेम्परेचर. दिस Ex ये है आइंस्टीन्स फंक्शन. एक्चुअली Ex इज आइंस्टीन्स फंक्शन. For different substances, different values of theta and nu is to be assumed. अलग अलग सब्सटेंस के लिए थीटा का वैल्यू और न्यू का वैल्यू अलग अलग होता है, एंड दीज दे आर ऑब्टेन्ड प्योरली एम्पिरिकली इन ऑर्डर टू फिट विथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. फंक्शन जो पीछे हम लोग देखे थे ई थीटा बाई टी इज नोन एज आइंस्टीन्स फंक्शन एंड यूजुअली डिनोटेड बाय Ex, यानी ई थीटा बाई टी ही जो है वो Ex है, आइंस्टीन्स फंक्शन. चूँकि आइंस्टीन ने इसको निकाला इसलिए इसका नाम दिया गया आइंस्टीन्स फंक्शन Ex एंड डिनोटेड बाय Ex. द कर्व ऑफ Ex is shown in this figure below along with curve calculated from Device formula. अब देखिए ये कर्व जो ये लाइन है ये आइंस्टीन्स के द्वारा जो निकाला गया वो है. ये dx वाला जो है ये हम लोग आगे डिवाइस थ्योरी फिर देखेंगे, उसमें ये डिवाइस का जो है वो ग्राफ है. देखिए दोनों में दिख रहे हैं, ये है
तो कर्व्स करस्पॉन्डिंग आइंस्टीन्स एंड डिवाइस फंक्शन. तो it is seen that Einstein's expression explain a specific heat curve up to a certain point. तो इससे देखते हैं कि आइंस्टीन जो था उनका ये स्पेसिफिक हीट का थ्योरी वो कर्व से एक सर्टेन पॉइंट्स तक जो है वो एक्सप्लेन कर पाता है, बट फेल्स कंप्लीटली एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर. लेकिन लो टेम्परेचर पर जो है आइंस्टीन्स का थ्योरी जो है वो फेल कर जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर एट 14 डिग्री केल्विन, 14 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर सिल्वर वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम आइंस्टीन्स फार्मूला इज 28 टाइम्स लोअर देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ऐसा पाया गया है एक्सपेरिमेंट से कि 14 डिग्री टेम्परेचर पर सिल्वर का जो है 14 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बहुत लो हुआ, तो ये जो है 28 गुना कम है किससे, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है उससे. तो 10 at lower temperature discrepancy is greater. जैसे जितना लो टेम्परेचर होता है डिस्क्रिपेंसी बढ़ता जाता है. और अनदर वीक पॉइंट ऑफ आइंस्टीन्स डिडक्शन इज दैट nu and theta are obtained empirically and cannot be verified from any other independent data. Nevertheless, it was a great step forward in the right direction. तो इसका मतलब था आइंस्टीन फील किया कि ये फेल्यूर हो गया दो कि लो टेम्परेचर में डिस्क्रिपेंसी जो है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके बाद भी ये जो है एक सही स्टेप था, फॉरवर्ड स्टेप था बाय आइंस्टीन इन राइट डायरेक्शन. तो आइंस्टीन हिमसेल्फ रिकॉग्नाइज दैट एजम्पशंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक वाइब्रेशन डिड नॉट करस्पॉन्ड टू एक्चुअल फैक्ट्स. अंत में उनको ये लगा कि हम जो एजम्पशन बनाया है इसमें कुछ कमियां हैं. वो क्या हैं? यही कि आइंस्टीन्स बिलीफ, उनको विश्वास हुआ, हिमसेल्फ रिकॉग्नाइज दैट एजम्पशंस मोनोक्रोमेटिक वाइब्रेशन डिड नॉट करस्पॉन्ड टू एक्चुअल फैक्ट्स एंड द वाइब्रेशन ऑफ पर्टिकुलर एटम मस्ट बी वेरी कॉम्प्लेक्स इंडीड बिकॉज इट इज अंडर द फील्ड ऑफ फोर्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ अदर वाइब्रेटिंग एटम्स. मतलब कोई एक एटम जो है उसका हम लेते हैं, लेकिन वहाँ और एटम हैं, उनके फोर्स ऑफ फील्ड जो हैं के प्रभाव में ए लार्ज ऑफ नंबर एटम्स भरे हैं. कोई सब्सटेंस बहुत सारे एटम होते हैं, हम केवल एक का विचार कर रहे हैं, लेकिन दूसरा का जो है फोर्स का फील्ड है वो इफेक्ट करता है उसके वाइब्रेशन पर. और इसीलिए लगा कि उनको कि हमारे एजम्पशंस में कुछ कमियां रह गई, इसके चलते वो रिजल्ट जो है लो टेम्परेचर रीजन में जो है डिस्क्रिपेंसीज फाइंड किया गया और ये कमी रह गई आइंस्टीन्स. और यू कैन से क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स फर्स्ट गिवन बाय आइंस्टीन्स. अब इसके बाद हम लोग डिवाइस थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसमें जो है इसको कहाँ तक रिमूव कर सकते हैं डिस्क्रिपेंसीज को फाइंड करेंगे. थैंक यू.